Students, hope you are doing well. Today we will continue the chapter 4, that is heat. In previous class, we learned hot and cold, temperature, thermometer, types of thermometer, and reading of thermometer. In this class, we will learn topic 1, transfer of heat. In transfer of heat, there are three processes. First, conduction. Second, convection. Third, radiation. Today's second topic is conductors. Third topic, insulators. Fourth topic, sea breeze. Fifth topic, land breeze. And sixth topic, kinds of clothes. So let us start from the first topic, transfer of heat. You might have observed that a frying pan becomes hot when kept on a flame. आपने देखा होगा फ्राइंग पैन को जब हम फ्लेम पर रखते हैं तो गर्म हो जाता है. It is because the heat passes from the flame to the utensil. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हीट फ्लेम के थ्रू अटेंसिल में पास होता है. When the pan is removed from the fire, it slowly cools down. जब हम फायर से पैन को हटा देते हैं तो ये धीरे धीरे ठंडा हो जाता है. Why does it cool down? यह ठंडा क्यों होता है? इसके आंसर के लिए the heat is transferred from the pan to the surroundings. हीट पैन से सराउंडिंग्स में ट्रांसफर हो जाता है. So you can understand that in both cases the heat flows from the hotter object to a colder object. इससे आप समझ सकते हैं कि दोनों ही केस में हीट हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होता है. In fact, in all cases, heat flows from a hotter object to a colder object. In fact, सभी केस में हीट हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होता है. How does heat flow? कैसे हीट फ्लो होता है? इसके आंसर के लिए हम लोग को एक्टिविटी 4.6 पढ़ना पड़ेगा. टेक ए रॉड और फ्लैट स्ट्रिप ऑफ अ मेटल, से ऑफ एल्यूमिनियम और आयरन. एल्यूमिनियम या आयरन मेटल का या तो एक रॉड ले लीजिए या फ्लैट स्ट्रिप ले लीजिए. फिक्स अ फ्यू स्मॉल वैक्स पीसेस ऑन द रॉड. कुछ स्मॉल वैक्स के पीसेस उस रॉड पर फिक्स कीजिए. These pieces should be at nearly equal distances. और ये वैक्स के pieces equal distance पर फिक्स होना चाहिए. Clamp the rod to a stand. अब इस रॉड को स्टैंड से क्लैम्प कर दीजिए. If you do not find a stand, you can put one end of the rod in between bricks. यदि आपके पास स्टैंड नहीं है तो रॉड के एक एंड को ब्रिक्स के बीच में रख दीजिए. ऐसे, ठीक है? Now hit the other end of the rod and observe. अब रॉड के दूसरे एंड को हिट कीजिए और ऑब्जर्व कीजिए. What happens to the wax pieces? वैक्स पीसेस का क्या होता है? Do these pieces begin to fall? क्या ये पीसेस गिरने लगते हैं? Which piece falls the first? कौन सा पीस पहले गिरता है? तो इसका आंसर क्या होगा कि हाँ, ये पीसेस गिरने लगता है और फ्लेम के पास वाला पीस जो है वो पहले गिरता है. Do you think that heat is transferred from the end nearest to the flame to the other end? क्या आपको लगता है कि हीट का ट्रांसफर फ्लेम के पास से दूसरी तरफ जाता है? तो इसका भी आंसर होगा yes. Now there is one definition. The process by which heat is transferred from the hotter end to the colder end of an object is known as conduction. वह प्रोसेस जिससे हीट का ट्रांसफर किसी ऑब्जेक्ट के हॉटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ होता है, कंडक्शन कहलाता है. In solids, generally, the heat is transferred by the process of conduction. Solid में generally heat transfer conduction process से होता है. Now there is another definition. The materials which allow heat to pass through them easily are conductors of heat. Materials जो heat को अपने से आसानी से पास होने दे, conductors of heat कहलाता है. For examples, aluminium, iron and copper. Now second definition. The materials which do not allow heat to pass through them easily are poor conductors of heat, such as plastic and wood. Materials जो हीट को अपने से आसानी से पास नहीं होने दे, poor conductors of heat कहलाता है. एग्जाम्पल के लिए प्लास्टिक और वुड. Poor conductors are known as insulators. Poor conductors insulators कहलाता है. Now next topic, the water and air are poor conductors of heat. वाटर और एयर जो है वो हीट का पुअर कंडक्टर्स है. Then how does the heat transfer take place in these substances? वाटर एंड एयर यदि पुअर कंडक्टर्स है तो इस सब्सटेंसेस से हीट कैसे ट्रांसफर होता है? इसके आंसर के लिए हम लोग को एक्टिविटी 4.8 पढ़ना पड़ेगा. टेक ए राउंड बॉटल फ्लास्क. इसको कहा जाता है राउंड बॉटल फ्लास्क. ओके, एक राउंड बॉटल फ्लास्क लेना है. Fill it 2/3 with water. Place it on a tripod or make some arrangement to place the flask in such a way that you can heat it
by placing a candle below it. Wait till the water in the flask is still. Place a crystal of potassium permanganate at the bottom of the flask gently using a straw. Now heat the water by placing the candle just below the crystal. एक राउंड बोतल फ्लास्क लेना है, इसमें 2/3 यहाँ देख लीजिए, इसमें 2/3 पानी भर देना है। अब इसे ट्राइपॉड स्टैंड या ऐसी जगह पर रखना है जिससे इसके नीचे से हीट आसानी से दिया जा सके। अब राउंड बोतल फ्लास्क को कुछ देर तक छोड़ देना है जब तक कि इसका पानी स्थिर ना हो जाए। फिर इसमें स्ट्रॉ के हेल्प से पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल इस बॉटल के नीचे की तरफ पहुंचाना है और फिर इसे हीट करना है। When water is heated, the water near the flame gets hot. Hot water rises up. The cold water from the sides move down towards the source of heat. This water also gets hot and rises, and water from the sides moves down. This process continues till the whole water gets heated. This mode of heat transfer is known as convection. आइए डायग्राम में समझते हैं। जब बॉटल को हम लोग गर्म करते हैं तो फ्लेम के पास वाला जो वाटर है वो गर्म हो जाता है। गर्म होकर के ये ऊपर की तरफ चला जाता है और इसके आसपास जो ठंडा वाटर है वो यहाँ चला आता है। यहाँ आने के बाद फिर से ये गर्म हो जाता है और ऊपर की तरफ चला जाता है। ठीक है, और ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक इस बॉटल का पूरा वाटर गर्म ना हो जाए। और हीट ट्रांसफर के इस मोड को कन्वेक्शन कहा जाता है। द एयर नियर द हीट सोर्स गेट्स हॉट एंड राइजेस। अब एयर की बात कर रहा है, इस एक्टिविटी में हम लोग लिक्विड की बात की, अब हम लोग एयर के बारे में पढ़ेंगे। आई रिपीट, द एयर नियर द हीट सोर्स गेट्स हॉट एंड राइजेस। हीट सोर्स के पास जो एयर होता है वो गर्म हो जाता है, ऊपर की तरफ उठ जाता है। द एयर फ्रॉम द साइड्स कम्स इनटू टेक इट्स प्लेस, और साइड के एयर उस प्लेस पर आ जाता है जहां से एयर गर्म होकर के ऊपर चला जाता है। इन दिस वे द एयर गेट्स हीटेड, और इस तरह से एयर जो है गर्म हो जाता है। द फॉलोइंग एक्टिविटी कंफर्म्स दिस आइडिया। इस एक्टिविटी से हम लोग को ये आइडिया कंफर्म हो गया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक। ड्यूरिंग द डे the land gets heated faster than the water. The air over the land becomes hotter and rises up. The cooler air from the sea rushes in towards the land to take its place. The warm air from the land moves toward the sea to complete the cycle. The air from the sea is called the sea breeze. आइए इसको डायग्राम से समझते हैं। ये डायग्राम सी ब्रीज का है। सी ब्रीज डे टाइम में होता है। डे टाइम में सन के हीट से लैंड जल्दी गर्म हो जाता है और सी देर से, जिसकी वजह से लैंड के जस्ट ऊपर वाली हवा गर्म होकर हल्की हो जाती है और यह ऊपर की तरफ चली जाती है। इसके विपरीत सी के ऊपर वाली हवा ठंडी और भारी होती है, जो उस स्पेस में चली आती है जहां से हवा गर्म होकर ऊपर गई थी। फिर ये हवा, जो ठंडी हवा सी की तरफ से यहाँ आई है, वो भी गर्म हो जाती है, हल्की हो जाती है और ऊपर की तरफ चली जाती है। ऐसा साइकिल चलता रहता है और इस साइकिल को सी ब्रीज कहते हैं। इसे दूसरे डायग्राम से भी समझ सकते हैं। यहाँ देख लीजिए, ये जो कूल एयर है वो लैंड की तरफ आ रही है और लैंड की तरफ से जो हॉट एयर है वो ऊपर की तरफ जा रही है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक। एट नाइट इट इज एग्जैक्टली द रिवर्स। द वाटर कूल्स डाउन more slowly than the land. So the cool air from the land moves towards the sea. This is called the land bridge. इसको भी डायग्राम से ही समझते हैं। ये लैंड ब्रिज का डायग्राम है। सी ब्रिज के ठीक विपरीत सी के ऊपर वाली हवा गर्म और हल्की होती है, जिसकी वजह से यह ऊपर उठ जाती है, और लैंड के ऊपर की हवा ठंडी और भारी होती है, जो सी के ऊपर वाले स्पेस में चली जाती है, जहां से हवा गर्म होकर ऊपर उठती है। ये साइकिल चलता रहता है और इसे लैंड ब्रिज कहते हैं। इसको इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं। सी के ऊपर वाली हवा हॉट है और लैंड के ऊपर वाली हवा कूल है। When we come out in the sun, we feel warm. जब हम धूप में निकलते हैं तो हमें गर्मी महसूस होती है। How does the heat from the sun reach us? सन से गर्मी हम तक कैसे पहुंचती है? From the sun, the heat comes to us by another process known as radiation. सन से गर्मी हम तक पहुंचती है दूसरे प्रोसेस से, जिसको रेडिएशन कहा जाता है। The transfer of heat by radiation does not require any medium. रेडिएशन प्रोसेस में किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है।
It can take place whether a medium is present or not. यह प्रोसेस मीडियम के रहने पर भी हो सकता है और मीडियम के नहीं रहने पर भी हो सकता है. All hot bodies radiate energy. सभी गर्म बॉडी जो है हीट को रेडिएट करती है. When this heat falls on some object, जब यह हीट किसी ऑब्जेक्ट पर गिरती है, a part of it is reflected. तो इसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है. A part is absorbed. और कुछ पार्ट एब्जॉर्ब कर लिया जाता है ऑब्जेक्ट के द्वारा. And a part may be transmitted. और कुछ पार्ट उस ऑब्जेक्ट के द्वारा ट्रांसमिट कर दिया जाता है. The temperature of the object increases due to the absorbed part of the heat. उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर एब्जॉर्ब किए हुए हीट से बढ़ जाता है. Now next topic, kinds of clothes we wear in summer and winter. In summer we prefer light color clothes and in winter we usually wear dark colored clothes. समर में हम लोग लाइट कलर के क्लोथ्स को प्रेफर करते हैं और विंटर में हम लोग डार्क कलर के क्लोथ्स को प्रेफर करते हैं. Why is it so? ऐसा क्यों होता है? इसके लिए हम लोग को एक्टिविटी 4.10 पढ़ना पड़ेगा. टेक 2 आइडेंटिकल टीन कैंस. एक तरह के 2 टीन कैंस लेने हैं. पेंट द आउटर सरफेस ऑफ वन ब्लैक एंड ऑफ द अदर व्हाइट. एक टीन कैन के आउटर सरफेस को ब्लैक कलर से कलर कर देना है और दूसरे टीन कैन को व्हाइट कलर से कलर कर देना है. Pour equal amounts of water in each and leave them in the midday sun for about an hour. दोनों टीन कैन में इक्वल अमाउंट्स के वाटर को डालना है और फिर 1 घंटे के लिए मिड डे सन में छोड़ देना है. मेजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैंस. अब दोनों कैंस के टेम्परेचर को मेजर करना है. डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द टेम्परेचर? क्या कोई डिफरेंस आपको नजर आ रहा है दोनों कैन के टेम्परेचर में? इन विच कैन इज द वाटर वार्मर? किस कैन का वाटर ज्यादा गर्म है? तो जो कलर्ड कैन है उसका वाटर ज्यादा गर्म होगा और इसका कम गर्म होगा. यू कैन फील द डिफरेंस इवन बाय टचिंग वाटर इन द 2 कैंस. और इस टेम्परेचर का डिफरेंस आप टच करके भी फील कर सकते हो. अब इस एक्टिविटी का कंक्लूजन देखिए. डार्क सरफेस एब्जॉर्ब्स मोर हीट एंड देयरफॉर वी फील कंफर्टेबल विद डार्क कलर क्लोथ्स इन द विंटर. यहाँ भी हमने क्या देखा? इस कैन का वाटर ज्यादा गर्म है. तो वही चीज यहाँ बताया जा रहा है कि डार्क कलर का जो सरफेस है वो ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए हम लोग विंटर में डार्क कलर के क्लोथ्स को प्रेफर करते हैं और कंफर्टेबल फील करते हैं. लाइट कलर क्लोथ्स रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट दैट फॉल्स ऑन देम एंड देयरफॉर वी फील मोर कंफर्टेबल वेयरिंग देम इन द समर. और लाइट कलर का क्लोथ जो है वो अधिकतर हीट को रिफ्लेक्ट कर देता है जो उसके ऊपर गिरता है, इसीलिए हम लोग समर में लाइट कलर के क्लोथ्स को पहनने में ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं. नाउ वूलन क्लोथ्स कीप अस वार्म इन विंटर. वूल इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. वूल हीट का पुअर कंडक्टर है. मोreover देयर इज एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द वूल फाइबर्स. इसके बावजूद वूल फाइबर्स के बीच में एयर ट्रैप्ड हो जाता है. दिस एयर प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग्स. और ये जो एयर ट्रैप्ड होता है ये हमारे बॉडी का टेम्परेचर को सराउंडिंग्स में नहीं जाने देता है. सो वी फील वार्म और इसलिए हम लोग गर्म महसूस करते हैं. सपोज यू आर गिवन द चॉइस इन द विंटर ऑफ यूजिंग ईदर 1 थिक ब्लैंकेट और 2 थिन ब्लैंकेट्स जॉइन टुगेदर. मान लो कि तुम्हें चॉइस दिया गया है एक मोटा कंबल ले लो या 2 पतला कंबल ले लो. व्हाट वुड यू चूज एंड व्हाई? तुम किसे चूज करोगे और क्यों? तो इसका आंसर क्या होगा? हमें 2 पतला कंबल को चूज करना चाहिए क्योंकि उस 2 पतले कंबल के बीच में एयर ट्रैप्ड हो जाता है और हमारे बॉडी की गर्मी को बाहर नहीं निकलने देता है. रिमेंबर दैट देयर वुड बी अ लेयर ऑफ एयर इन बिटवीन द ब्लैंकेट्स. बता दिया मैंने. दैट्स इट. यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और आगे के वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा.